تو وہ نوجوان لڑکی سے شادی کی اور مطلب چاہتا تھا کہ میں ایک نوجوان شوہر ثابت ہوں، تو ہو نہیں سکا، وہ اسی حالت میں ہی مر گیا۔ سمجھ جائیں بس، وہ ان کے گرو گھنٹال کہا کرتے تھے کہ سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اسی حالت میں، حالت غیر میں وہ مر گئے وہاں پر۔ تو پھر ان کی بیوی نے ان کو لباس وغیرہ، ان کا چادر شادر اوپر دے کر لوگوں کو بلایا۔ بہرحال وہ بھی عبرتناک موت مرا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 83 میں مرنے سے پہلے 74 میں گیا تھا قومی اسمبلی پاکستان کی، وہاں پر پگڑی باندھ کے، داڑھی اچھی تیل لگا کے، داڑھی کو کھونڈی ہاتھ میں پکڑ کے وہ ان کو بتانے گیا تھا کہ ہم کافر نہیں ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، دیکھو ہم نبی پاک پر درود پڑھتے ہیں، دیکھو تمہارے جیسا کلمہ پڑھتے ہیں، دیکھو تمہارے جیسے ہی ہم رکوع سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تو ہم میں کیا ہے، ہم مسلمان ہی ہیں۔ تو انہوں نے وہاں اس کو اسمبلی میں، قومی اسمبلی کے اندر انٹیروگیٹ کیا تھا 9 دن تک۔ 9 دن تک، اگست 1974 کو جب انٹیروگیشن ہوئی تو وہ جھوٹا نکلا۔ وہ جو کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، میں دیکھو میری داڑھی دیکھو، میرا کلمہ دیکھو، میرا درود دیکھو، میری نماز دیکھو، اس کو اسمبلی والوں نے کہا کہ تو کافر، بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو بھی اور تیری ساری ذریت بھی، تیرے سارے ساتھی بھی۔ تمہیں ہم رجسٹرڈ کر رہے ہیں پاکستان میں ایز اے مائنورٹی۔ آج سے پہلے تم مسلم پاپولیشن کا ہی حصہ تھے، لیکن آج کے بعد تم مسلم پاپولیشن کا حصہ نہیں ہو اور تم نان مسلم ہو آج کے بعد۔ تو وہ عبرتناک جام کو پہنچا 1983 میں، وہ ماتھے پر ٹیکا لگوانے کے 9 سال بعد۔ اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی اس جانشین نے بنا، خود جس کا پنگا نام لیا اور مرزا خود تھا۔ چلے گئے پارلیمنٹ میں، کسی نے بلایا بولا؟ ہاں ہاں، اس نے خود کہا، ہاں نہیں اس نے کہا تھا کہ میں یہ بات آ کے خود بیان کرنا چاہتا ہوں، مجھے موقع دو، میں بہت سمجھدار آدمی ہوں، بڑا چرب زبان ہوں، بڑا بتونی ہوں، مجھے بڑی باتیں آتی ہیں، لیکن مجھے 2 منٹ دے، میں آ کے باقی وہ جی آخری کی بات سناتا ہوں۔ دیکھیں، سن لیں میرے بھائی، کہانی سن لیں، ایک ایک کی کہانی دیکھ لیں کہ کیا انجام ہو رہا ہے۔ خود جو آپ بیل مجھے مار ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھو، اس طرح سے یہاں آپ کو ملیں گے ٹک ٹاک میں بھی، کوئی ٹرو مسلم ہے، کوئی اصلی مسلم ہے، کوئی پتہ نہیں کون سا مسلمان ہے۔ یہ ہے حقیقت ان کی۔ مسلمان کو اصلی مسلمان بتانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اصلی مسلمان ہے۔ ایک دن وہ مولوی صاحب ہے نا، مولوی نوید وڑائچ، وہ کہہ رہے تھے واٹس اپ میں، یہ واٹس اپ کی بات ہے، گفتگو کر رہے تھے، کہتے بھائی میرے بچے جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں ہم مسلمان ہیں، آپ نے اگر کافر کہہ دیا تو کہہ دیا، بچے آپس میں جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ یہ ہے بھائی کہ بچے جانتے ہیں، ان کو کس نے بتایا؟ آپ ہی نے بتایا نا، بلکہ آپ صرف مسلمان کہہ رہے ہیں، آپ کو کہنا چاہیے کہ اصل ٹرو مسلم ہے۔ تو یہ ہے ان کی باتیں بھائی جان۔ میں بھی تھوڑا سا میوٹ کر دیتا ہوں۔ صاحب کیوں میوٹ کر لیا آپ نے؟ پیر صاحب تتوں تے پار پاؤ۔ محترم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں باہر تھا، ابھی گھر پہنچا ہوں، اچھا تو اچھا، اندر رہ رہا ہوں، اور مجھے ندیم وہ پروین صاحب وہ نے
आमिर भाई कह रहे थे कि 9 दिन के लिए उसको किया गया, सवाल पूछे गए, 11 दिन पूछे गए, 9 दिन नहीं। असल में मैं बात कर रहा था, नदीम परवेज साहब और हमारे बड़े हैं, उन्होंने म्यूट कर दिया, वो क्या करें? किसने म्यूट किया है? नहीं 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 नहीं, ओ पीर नहीं साहब, नहीं नहीं, म्यूट किने लाया थे? नदीम परवेज ने भाई, बताओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी नहीं बात। पीर साहब लता दा पार पाओ। नहीं नहीं, उन्होंने म्यूट किया ना भाई, बताओ उनको, कहो। नहीं नहीं, आपने कहा मैं म्यूट कर लेता हूँ। मैंने कहा मुझे म्यूट ना करो। मलक कैसर ने आपको म्यूट किया। मैं वन मलिक तो कर ही नहीं ये सकता। यूसी साहब को उठाएं, ये बता क्या, ये बहुत परेशान है, मैं इनसे पूछूं कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो किधर गया मलक कैसर? मलक कैसर साहब ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਚੱਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਖੋ ਨਾ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ ਬਲਦੇ। ਅਜੀ यार ओ मलक कैसर एकदम बड़ा रौला बन जाना जिसले दो गुजर इकट्ठे हो जाने ना, अमर भाई ते ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਕ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਾ ਲਾਂਭਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾੜ ਘੱਟ ਹੈ, ਲਾਂਭਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਜਾ ਕੇ। ਨਦੀਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਿਰਾ ਲਾਂਭਾ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਉਹ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ। ਨੇ ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਮਾਈਕ ਗਿਆ। ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਆਈਫੋਨ ਜੇ 13 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਡੀਪੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖਾਂਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, बैकग्राउंड बड़ी प्रॉब्लम कर रही है। पूछ के ये कर रहे हैं, जानबूझ के। कौन? ਅਮਰ ਭਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੇ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 9 ਦਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, 9 ਦਿਨ ਨਹੀਂ 11 ਦਿਨ ਹੋਇਆ। अच्छा 11 दिन होया। वैसे ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 11 ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਆਇਆ ਇਸ ਵਕਤ। अच्छा नहीं ठीक है मैं क्या शायद ਉਹ 22 अगस्त 23 अगस्त 24 अगस्त नहीं, ਉਹ ਮੈਂ मैं- ਡੇਟਾ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇ- ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਚਲੋ ਜੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲੁਕਮਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਕਮਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਦੇ तो फिर सीधे हो जाओ। 11 दिन की इंटेरोगेशन के बाद उनको मुखरज मिनल मिल्ला करार दिया गया और वो उसी गम में 9 साल तड़पते 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 मर गए 1983 में। अच्छा ये तारीखी हकायक हैं, अल्फाज के चुनाव में फ़र्क हो सकता है, हम कोई गाली नहीं दे रहे। मिर्ज़ाई सुन के नीचे बैठ के सुन रहे हैं, बाहर जाके पता क्या कहेंगे, ओए इसको लेते हो अपनी ब्राड पर, ये सारा दिन हमारे काबरिन की तौहीन करता है। भाई ये तौहीन सारी आपकी है, आपके काबरिन हैं ही तौहीन, इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर वो नहीं गया वहाँ पर असेंबली में, खुद एप्लीकेशन देकर कि मुझे अपनी चरब जुबानी दिखानी है, मुझे अपने दलाइल पेश करने हैं, तो आप मुझे कहो कि मैं तौहीन कर रहा हूँ। देने वाला क्या अगर सबूत वो है खुद- आपके पास? खुद एप्लीकेशन देने वाला क्या सबूत है? रिक्वेस्ट करके गया, ये तो असेंबली के अल्फाज है ना कार्रवाई के। वो रिक्वेस्ट एप्लीकेशन से की है या बाई समवन पर्सन की है, आपने लेकिन वो रिक्वेस्ट करके गया, वो उन्होंने अल्फाज बताया पढ़े इसके हैं सामने का। हाँ पढ़े चलो हुए ठीक है, मैंने वैसे सवाल पूछा है, ठीक कर रही हूँ। हाँ रिक्वेस्ट जो उन्होंने की है उसका सबूत असेंबली की कार्रवाई के अंदर मौजूद है। तो ये वहाँ से ऐसे निकले हैं जिस तरह वो कहते हैं ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये वहाँ से निकले हैं ऐसे, असेंबली से गए तो थे बड़ा कुल्ला शुल्ला बांध के कि मैंने जब नबी पाक पर दरूद पढ़ना है
मैंने जब कलमा शहादत बार बार पढ़ना है तो भोले भाले मुसलमान हैं, असेंबली में भोले भाले मुसलमान बैठे हुए हैं, इनको मैंने वर्गला लेना है और मैंने कहना मैं भी तुम्हारे जैसा मुसलमान हूँ, मुझे खामखा काफिर करार देना चाहती हूँ। लेकिन ये नहीं पता वो लाख लाख वोट लेके आते हैं अपने हलके का, वो इतने भोले भाले नहीं होते। वो कहा था किसी ने फूलन देवी को, जब फूलन देवी मिनिस्टर बनी ना, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, तो एक इंटरव्यू लेने वाले ने उसको पूछा कि आप मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बन गई हैं और तालीम है आपकी सिफर, एजुकेशन आपकी अपनी सिफर है। फूलन देवी की एक लंबी बैकग्राउंड है, वो गरीब घराने से थी, किसी ने उसकी इज्जत लूटी, जना बिल जबर उसके साथ किया, तो उसने बदला लेने की ठान ली और बंदूक उठा ली और उसको कत्ल किया, फिर और लोगों को कत्ल किया। तो वो मफरूर रही, जंगलों में रही, वो उसके वो जो जंगलात है ना, क्या उसका इलाके का नाम है जहाँ पर ये हेलीकॉप्टर भी इनके चीफ का गिरा है पिछले दिनों में, उस इलाके में अंडमान निकोबार या उसको क्या बोलते हैं। तो वो वहाँ उन जंगलों में साल हर साल रही है, बिल आखिर वो वापस आई है और वो बन गई आके MNA बन गई, MP बन गई, वहाँ MP बोलते हैं, तो वो मिनिस्टर बन गई। आपकी तो है नहीं, तो आप कैसे बन गए? वो कहती तो क्या हो गया, मिनिस्टर शिक्षा के बगैर नहीं बन सकता। तो कहता है बन तो सकता है लेकिन इसके नुकसानात है ना। देखें कोई बंदा आपसे कोई साइन करवाने आएगा तो वो आपको तो पता नहीं होगा किस पर साइन करके दे रही हैं, आप तो पढ़ नहीं सकती हैं, तो वो गलत की चीज़ पर साइन करवा के आपसे ले जा सकता है ना, आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि आप तो कागज़ पर लिखा हो कुछ भी पढ़ नहीं सकती। फूलन देवी ने कहा था भगवान ने शिक्षा नहीं दी, दिमाग तो दिया है ना, अक्ल तो दी है ना, बुद्धि तो दी है ना, शिक्षा नहीं दी तो क्या हुआ। तो ये जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, अगर ये मजहबी तालीम नहीं भी इनके पास होती तो भी उनके पास बुद्धि ज़रूर होती है। वो सारे 1 लाख वोटरों को मिल के आते हैं वहाँ से, वो अच्छी भली अपनी उनकी जो है ना सलाहियत होती है लोगों को डील करने की, लोगों को पहचानने की। बंदा जाके सलाम ले वो उंगलियां गिन लेते हैं। ये सियासतदान हमने देखे हैं करीब से। बहरहाल इसने समझा कि मैं भोले भाले पॉलिटिशियनों को जाके वर्गला लूंगा, उनके सामने दरूद पढ़ूंगा, उनके सामने मैं कलमा पढ़ूंगा, तो मेरी दाढ़ी देखेंगे, मेरा कुल्ला देखेंगे, मेरे हाथ में खुंडी देखेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं इस बेचारे ने मुसलमान ना, इन्हों मुसलमान ही रहने दो, इसको कुछ ना कहो। ये किस तरफ से काफिर है? सारा उलिया तो इसका मुसलमानों वाला है। लेकिन 300 मेंबर था लगभग। राजा साहब कितने मेंबर थे? 300 के करीब असेंबली में मेंबर थे। वो हमारे एक दोस्त हैं 320। हाँ, हमारे एक दोस्त हैं कनाडा में के शेख साहब, उन्होंने कहा वो जो 320 मेंबर थे ना, उनमें से तो कोई कायल हुआ नहीं हुआ, कुछ चपड़ासी भी कायल नहीं हुआ जो दरवाजे पे खड़ा था। जो कौमी असेंबली के दरवाजे पर चपड़ासी खड़ा होता है ना, उसने भी नहीं कहा कि ये मिर्ज़ा साहब इनके कोई अकायद और नज़रियात मुसलमानों वाले हैं, इनके साथ ज़्यादती ना करो, इनको नॉन मुस्लिम ना डिक्लेयर करो। इन बेचारों को क्यों निकालते हो मुस्लिम उम्मत से? धक्का देकर निकाला मुसलमानों ने कि चल दौड़, निकल जाओ, तुम मुखरज मिनल मिल्ला हो, तुम्हारा मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। निकाल दिया। तो वो फिर उस गम में घुलते रहे। बिल आकर उन्होंने वापस जवानी पकड़ने की कोशिश की कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। 9 साल बाद जवानी पकड़ने की कोशिश की तो वो वहाँ पर उसी हालत में हालत मर्दमी कलदम हो गई और वो वफात पा गए। नहीं, वो उनका हालत का क्या कोई सबूत या कोई रेफरेंस है? हाँ, कुछ सीना बसीना रवायात होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स होते हैं। ये इनकी जमात के किसी भी बूढ़े बंदे से पूछेंगे, वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे, सिवाय उन अन्य भगतों के जो कहते थे कि बशीरुद्दीन महमूद अहमद को हम अपनी आंखों से भी अगर बदकारी करते देखेंगे, हम कहेंगे हमारी आंखें गलत कह रही हैं, हमारी आंखें झूठ बोल रही हैं। वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो वहाँ से छोड़कर आए हैं, ऐसे चौधरी को बुला के पूछें, शमसुद्दीन को बुला के पूछें, एक शेख को बुला के पूछें, सब आपको यही गवाहियाँ देंगे जो मैं बात कर रहा हूँ। 12
आपका दोस्त ट्रूथ सीकर तस्वीर के मतलब पूछ रहा है कौन है ये, जरा के इसको दे दो। क्या तस्वीर का क्या पूछ रहा है? ये कौन है बंदा, बताएं इसको ये कौन। भाई ये बंदा है, मैं बता चुका हूँ, ये बात आगे निकल गई है, पुलों के नीचे से पानी बह गया, ट्रुथ सीकर सारी जिंदगी तेने ट्रुथ नहीं सीख होना, मर जाए। ये मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी का नवासा है, जिसने परसों 22 तारीख को इस्लाम कबूल किया है, और उसने कहा है मिर्जा कादियानी लाइन है, कज़ाब है, मुर्तद है, जहन्नमी मानता हूँ मैं उसको। ये अल्फाज उसके लिखे हुए, मैं बताता हूँ, अभी दिखाता हूँ। थोड़ा मुझे अब घर की तरफ जा रहा हूँ, दिखाता हूँ सबूत इंशाल्लाह मैं। तो ये मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी का नवासा है, मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी की बेटी का बेटा है। एक झूठ आपके खलीफा ने भी बोला था ना, वो 2005 के जलसे में इंडिया में, ये मोहम्मद हुसैन बटालवी का नवासा है, ये अमतुर रऊफ का बेटा है। अमतुर रऊफ उनके किसी बेटी का नाम ही नहीं है। झूठा दादा भी तो झूठा पोतरा भी, सारे झूठे कज़्ज़ाब। वो जो बना था शेख बटालवी का नवासा, उस लाइन के दामाद को मैंने फ़ोन किया, यहाँ यूके में होता है। मैंने कहा तुम उसके दामाद हो शेख सईद के? कहता है हाँ। तो मैंने कहा वो कहता है मैं शेख बटालवी का नवासा हूँ। उसका क्या नाम है उसकी वालदा का? कहता है अमतुर रऊफ। तो मैंने कहा अमतुर रऊफ तो उनकी बेटी किसी का नाम ही नहीं है। मैंने बताया उनकी बेटियों के नाम, अमतुर सलाम और अमतुर रशीद और इस तरह के नाम, वो जो मेरे फातिमा एक का नाम था। तो मैंने कहा ये अमतुर रऊफ तो उनकी किसी बेटी का नाम ही नहीं है। फबोहतल्लज़ी कफर, काफर हक्का बक्का रह गया, कुछ जवाब नहीं है। मैंने कहा उनके किसी रिश्तेदार का नंबर दो मुझे, शेख बटालवी की अगर ये बेटी का बेटा है तो इसके मामू, इसके चाचू, इसके ताया, इसके भाई, इसके बहन, किसी का नंबर दो मुझे। वो मुरब्बी था, कहता मैं नंबर नहीं दे सकता। तो ये एक झूठ आपने बोला था वहां पर कि ये शेख बटालवी का नवासा है। एक सबूत हमने आपके सामने रखा है, देख लो सच्चा कौन और झूठा कौन। हशर के दिन होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। यहाँ पर दुनिया देख रही है आपके इन किस्बात को, मुगल्लिज़ात को, लगवियात को। बहरहाल फिर अस्कानी भाई अगर मौजूद हैं तो फिर मैं बताऊं कि चौथे का क्या बना। वो तीसरा जब मरा है 1983 में, उसके बाद उसका छोटा भाई बना जानशीन, मिर्जा ताहिर उसका नाम है। वो अपने बड़े भाई से भी ज्यादा ड्रामेबाज था। मैं जनाब जनरल ज़ियाल, वो बैठे ही है तो साथ ही सर मंडवाते ही ओले पड़ गए। वो जानशीन बने ही है तो वो जनरल ज़ियाल का ऑर्डिनेंस आ गया, ज़िया ऑर्डिनेंस जिसको बोलते हैं। उसमें इन पर पाबंदियां लग गई कि आपने अपना लिटरेचर पाकिस्तान में शाया नहीं करना, इसको प्रीच नहीं करना, तबलीग इसकी नहीं करनी, और अपने आप को एज ए मुस्लिम प्रिटेंड नहीं करना। जब आपको बता दिया गया कि आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप इस पर अमल क्यों नहीं कर रहे? उस कानून का फ़ायदा क्या जो कानून कागज़ों में हो, फाइल में लिखा हुआ हो और उस पर अमल ना हो रहा हो? उस कानून के बनाने का फ़ायदा क्या? अगर कहा जाए कानून में कि चोरी मना है, चोरी करने वाले को जेल में डाला जाएगा, अगर जेल में नहीं डालना, चोरों को पकड़ना नहीं, तो कानून बनाने का फ़ायदा? फिर कह दो चोरी आम है, चोरी इजाज़त है, करो चोरी। तो एक कानून बना हुआ है कि आप नॉन मुस्लिम हैं और आप 10 साल से पाकिस्तान में लोगों को धोखा दे रहे हैं, अपनी इबादत गाहों से आवाज़ें लगा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी बात सुनो। तुम नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किए गए हो। बहरहाल वो ज़िया ऑर्डिनेंस जब आया तो वो भी अपने आप को बड़ा चरब ज़बान समझता था ना। ये जो मिर्ज़ा ताहिर है जो इसका जानशीन बाद में बना, तो वो भी अपने आप को बड़ा चरब ज़बान समझता। उसने समझा कि मैं जनरल ज़िया से मुलाकात करूंगा, अपनी चरब ज़बानी से उसको राम कर लूंगा। बड़ा भाई तो मेरा गया था असेंबली में, असेंबली वालों को तो वो राम नहीं कर सका, इस अकेले जर्नल को तो मैं कर ही लूंगा। जर्नल तो फौजी होते हैं, सीधे साधे होते हैं, इनको मैं पकड़ लूंगा। उसने इससे मुलाकात ही नहीं की। ये जाके बाहर सिफारिशें डलवाता रहा, मैंने मिलना है जर्नल साहब से, टाइम ले दें, टाइम ले दें।
ये रोज वहां घूमता था, जाता था दरवाजे पे बंदों को लेके, मैं मेरी मुलाकात करवा दो, तो कोई मुलाकात नहीं करवाता था। बिल आखिर किसी ने उसके कान में डाला बकौल मिर्जाइयों के, दरोग बर गर्दने रावी, एक मिर्जाई रावी के बकौल स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर ने उसके कान में डाला। उसने कहा, मिर्जा साहब, ये जो तुम रोज इस्लामाबाद में पगड़ पहन के घूम रहे हो ना, इस्लामाबाद का मौसम अच्छा नहीं है। बस इतना ही उसने कहा। इसने जूते सर पे रखे, दुड़की लगा ली वहां से। पासपोर्ट भी किसी को भेजा, पासपोर्ट लेके ना उधर रबवे से तो कराची आ जाओ। तो ये इस्लामाबाद से सीधा दौड़ा कराची गया, वहां से पासपोर्ट अपना वो लेके आ गया, इसका साथी वहां से फ्लाइट पकड़ी और भाग गया बाहर। तो ये 84 से बाहर आया है। अब यहाँ आकर परपुर्जे निकालने लगा साल 2 साल के बाद कि मैं यहाँ पर अपने मुरीदों को मुतमिन करूँ, जो ये लंदन में मिर्ज़ाई यहाँ पर रहते थे, उनको झूठी कहानियाँ सुनाता था घड़ घड़ के। तो वहाँ पर वो मुरीद इसको पूछते थे ना कि कालिया अब बता तेरा क्या होगा। हम कादियान से रबवा आए, रबवा से धक्का दिया गया तो लंदन आ गए, अब क्या होगा हमारा? ये मंजिल कितनी लंबी है, ये रात कितनी काली है, ये कब ख़त्म होगी काली रात? तो उसने अपने मुरीदों को मुतमिन करने के लिए कहा कि हम इसके लिए दुआ करेंगे, बदुआ देंगे इसको, जनरल ज़िया को, इसके अल्लाह टुकड़े टुकड़े कर दे, अल्लाह इसको तबाह कर दे। रोज़ पलूते देता था वहाँ बैठ के अपनी इबादतगाह में। तो एक दफ़ा उसने अपने मुरीदों को कहा कि भाई मैं इसके साथ इसके लिए दुआ करता हूँ कि भाई अल्लाह हमारा फ़ैसला कर दे, या अल्लाह इसने हम पे बड़े जुल्म ढाए हैं, हमारा फ़ैसला कर दे। भाई इस तरह की दुआ की है। वो कोई मुबाहला नहीं है नहीं मुबाहला, लेकिन मिर्ज़ाइयों के यहाँ ऐसे ही होता है, जिसको खलीफा कह दे कि मैंने मुबाहला किया तो वो मुबाहला बना लेते। बहरहाल इसने एक खुतबे में बड़ी बदुआएं इस तरह की दी कि या अल्लाह तू फैसला कर दे, बड़े जुल्म हो गए, बड़ी तकलीफ़ें हो गई, मर गए हम, मार दिया, दर बदर के धक्के खा रहे हैं, फिरते हैं कब से दर बदर, कभी इस नगर कभी उस नगर, लाएंगे उसको ढूंढ कर मैं और मेरी आवारगी। तो कहने लगा, या अल्लाह हमारी सुन फरियाद पीरां दे पीरा। अच्छा, वो आगे क्या है भाई? सुल्तान बाबू का शेर है, सुन फरियाद पीरां दे पीरा, मेरी अर्ज सुनी कन तार के, तिलक तिलक के मुंह सिर भरिया, गंदी गली गया हाँ, तकदा लोक तमाशा हजरत, मैं बेहाल पिया हाँ। बड़ा बुरा हाल है, कच्ची गली में चला गया हूँ, वहाँ पर गिरा पड़ा हूँ, तिलक तिलक के मुंह सिर भरिया, गंदी गली गया हाँ, तकदा लोक तमाशा हजरत, मैं बेहाल पिया हाँ। तो ये इस तरह की वहाँ पर रो रो के बदुआएं दे रहा था। तो बाद में कहने लगा भी हमने दुआ की है, आप सब भी मिलके दुआ करें कि कोई अल्लाह ताला ऐसा निशान दिखाए, कोई ऐसा मोजज़ा दिखाए कि पाकिस्तान के लोग कायल हो जाएं कि मिर्ज़ाइयों की बदुआ लगी है इनको, मिर्ज़ाइयों को काफिर करार दिया, मुल्क से निकाला, फिर ऊपर से पाबंदियाँ लगा दी कि तुम अपने आप को मुसलमान शो भी नहीं कर सकते। गली में खड़े होकर सलाम अलैकुम कहोगे 295 सी लग जाएगी, गली में खड़े होकर बिस्मिल्लाह पढ़ोगे 295 सी लग जाए। हाँ अंदर पढ़ो, घर के अंदर जाके बिस्मिल्लाह पढ़ो, भले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, जो मर्जी पढ़ो, लोगों को ना दिखाओ कि तुम मुसलमान बनने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को मुसलमान शो ना करो। तो वो कहने लगा मुरीदों को कि भाई दुआ करो कि अल्लाह ताला निशान दिखा दे। अच्छा जी, निशान के लिए दुआएं कराने लगा। 12 अगस्त 1988 को जब जनरल ज़िया की जिंदगी सिर्फ 5 दिन बाकी रह गई थी, 12 अगस्त 1988, उस दिन खुतबा देता है, कहता है यार आज रात को मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब जिस तरह ये नासिर मिर्ज़ाई ने कह के गया कि मैंने ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की तहरीर पढ़ी है,
تو مجھے زور کا جھٹکا لگا ہے کہ میں نے کیا کر لیا ہے، مجھے تو مبالغہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ایسے ہی وہ کہتا ہے کہ میں نے آج رات کو خواب دیکھا ہے، اس خواب نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ وہ لمبی خواب بیان کرتا ہے، میں اس کو کوڈ نہیں کرنا چاہتا، ایسے ہی لغو سی خواب ہے۔ تو کہتا ہے اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا، خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مجھے سمجھایا گیا ہے خدا کی طرف سے کہ یہ جو مطلب نشان تم طلب کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ نشان دکھا دے، اگر نشان اللہ دکھا دے گا تو لوگ مرزائی ہو جائیں گے۔ نشان دیکھ کے لوگ کوئی مطلب پہلے جن لوگوں نے نشان دیکھے وہ مان گئے سارے۔ نشان کوئی دکھا بھی دے تو کہنے والے کہہ دیتے ہیں یہ جادو ہے یا یہ ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے۔ تو کوئی ضروری ہوتا ہے نشان، کوئی ضروری ہوتا ہے کسی کے ماننے کے لیے، کسی کو منوانے کے لیے؟ تو کہتا ہے کہ آج رات میں نے وہ خواب دیکھا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشان دکھائے، وہ میری بے وقوفی تھی، نادانی تھی، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آج رات کو میں نے وہ خواب دیکھا ہے تو میری آنکھیں کھلی، پھر مجھے ہوش آئی ہے کہ میں نے غلطی کر دی۔ اب کیا کریں؟ کہتا ہے وہ دعا والی تحریک منسوخ سمجھو، چھوڑ دو دعا کرنی، بس اللہ پاک جو کرنا چاہے گا وہ دکھانا چاہے گا دکھا دے، نہیں دکھانا چاہتا نہ دکھائے، لیکن ہم جو دعا کر رہے ہیں وہ غلطی ہماری غلطی ہے، ہمیں خدا سے نشان طلب نہیں کرنا۔ 12 اگست کو یہ کہہ کر گھر گیا ہے۔ 17 اگست کو جنرل ضیاء الحق کا C-130 بہاولپور سے آتے ہوئے کریش ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ تصرف الہی سے اس بنوٹی خلیفے کے منہ سے یہ نہ کہلواتا کہ وہ میری بے وقوفی تھی جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یا اللہ نشان دکھائے، دعا کرو یا اللہ نشان دکھا دو، یا اللہ نشان دکھا دو، اگر یہ اس دن نہ کہتا اور اس دن بھی دعائیں کرواتا کہ یا اللہ نشان دکھا، یا اللہ نشان دکھا، اور 5 دن بعد جہاز گر جاتا تو مرزائیوں نے کیا کہنا تھا؟ مرزائیوں تو یہی کہنا تھا نا، نشان دکھا دے نا، دیکھیں ہمارا خلیفہ کہہ رہا تھی نشان دکھا، نشان دکھا، دکھایا کہ نہیں نشان دکھایا؟ اللہ نے نشان دکھا دیا۔ لیکن دیکھو اگر یہ ایسا ہو جاتا تو انہوں رب کنے کہنا سی، انہوں رب کنے مننا سی؟ وہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے نا، جے رب سو جاندہ تے بدر 313 صحابہ کی کون سنتا؟ اگر رب سونے والا ہوتا، رب ان ظالموں کو، ان مفتریوں کو رسا نہ ڈالتا، تو بتاؤ حنین میں جب صحابہ کے پاؤں اکھڑے تھے کون مدد کرتا ان کی؟ اس نے اپنی قدرتوں سے لوگوں سے اپنا لوہا منوایا ہے، اور دنیا ماننے پر مجبور ہے کہ کوئی ہستی ہے صحیح، بالکل منکر، نبیوں کے منکر، قرآن کے منکر، تورات انجیل زبور کے منکر، وہ بھی کہتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ہے صحیح، سمجھ نہیں آتی لیکن ہے صحیح، کوئی نہ کوئی ہے اس یونیورس کا کریٹر۔ تو اس رب نے ایسے ایسے نشان دکھائے ہیں، ایسے ایسے معجزات دنیا میں دکھائے ہیں، لوگ انگشت بدنداں رہ گئے، انگلی دانتوں میں ڈال کے سوچی پڑ گئے ہیں کہ کون ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص تصرف سے اس مرزائی کے منہ سے یہ کہلوایا 12 اگست کو کہ یا اللہ یہ میری بے وقوفی تھی، او مرزائیو یہ میری بے وقوفی تھی جو میں نے تمہیں کہا تھا کہ نشان مانگو، نشان، اور نشان کوئی نہیں مانگنا چاہیے، نشان نہیں مانگنا چاہیے، غلطی ہوگی مجھ سے، غلطی مانی۔ 5 دن بعد جنرل ضیاء الحق کا طیارہ کریش ہوا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے سارے جنرل جتنے اس کے ساتھ تھے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ وہ مر گیا۔ یہ میں مرزا طاہر کی بات کرنے لگا تھا کہ مرزا طاہر جب جنرل ضیاء الحق کے طیارے کے بعد ڈرامے کرنے لگا
देखो 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 कौन आया, मैंने कहा था ना निशान है, मैंने कहा था ना निशान बेहयाई। जब बंदा बेहयाई पर उतर आए ना, सही मुस्लिम एक हदीस आती है कि जब तुझ में हया ना रहे फिर जो चाहे कर। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुझ में हया ना रहे फिर जो चाहे कर। मिर्जाइयों के इस बनौटी खलीफे ने 1988 के बाद, जब 17 अगस्त 1988 को जनरल ज़िया का त्यारा क्रैश हुआ, तो इसने बावजूद इसके कि इसने मनसूख करवा दी थी अपनी दुआ तहरीक, वो जो कहता था कि निशान के वो कैंसिल करवा दी, उसके बावजूद ये कहने लगा कि ये मेरी दुआ से हुआ है सारा कुछ, ये मेरी दुआ से हुआ है सारा कुछ। 1988 में तो बहरहाल जब इसने फिर झूठ बोला अपने मिर्जाइयों के सामने, तो फिर क्या हुआ इसकी किस्त में आके सुनाता हूँ। 1 मिनट होल्ड। हाँ जी, मौजूद हो सारे? फिर सौ गए हो? एप्लीकेशन उसको नादानी करार दिया था और उसको मनसूख करार दिया था, उसके बावजूद जनरल ज़िया के त्यारे को ये अपना मोबाइल का इसके दो भोले भाले मरबी, बकौल इसके खुद इसने कहा है भोले भाले मरबी, इसके दो भोले भाले मरबी मौलाना इलियास तार के सामने बैठ गए कराची में, और वहां पर उन्होंने इसकी तरफ से, मिर्जा ताहिर की तरफ से मोबाइले का चैलेंज उसके सामने रखा मौलाना इलियास तार के सामने। तो मौलाना इलियास तार ने कहा भाई इधर आए दिलबर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए, लाओ जो मुबाइला करने वाला तुम्हारा खलीफा कहता है मुबाइला करना है, छपवा देना इसको अखबारों में। अपने छपवाया तो इन्होंने नहीं लंदन में, लेकिन बहरहाल बेईमानी तो इनकी विरासत है। अबुल फा ने भी कहा था कि जो कुछ आपने कहा वो तो मैंने अपने अहल हदीस अमृतसर में छपवा दिया। आपने कहा था ना मेरी ये दुआ तहरीर अपने रिसाला अहल हदीस अमृतसर में शाया कर दें और मौलवी साहब इसके नीचे जो चाहें लिख दें, मामला खुदा के हाथ में। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने अपने रिसाले अहल हदीस अमृतसर में उसको छापा और उसके नीचे 7 पॉइंट्स लिखे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मेरे जवाब अपने अखबारात अल हकम और अल बदर में छपवाना, पर हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा के। मिर्जाइयों से क्या उम्मीद, नमक हरामों से, कि ये किसी से वफा करेंगे। इनसे क्या तवक्को आप कर सकते हैं? इन्होंने नहीं छुपाई।
मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने जो बात नीचे लिखी थी, उस इश्तिहार को छाप कर उसके नीचे जो बातें लिखी थी मिर्जाइयों ने नहीं छुपाई। 12 ऐसे ही मौलाना इलियास तार के साथ ये मायदा था कि मैं यहाँ सक्खर में, कराची में, हैदराबाद में छुपा देता हूँ सारी अखबारों में, आप वहाँ लंदन में छुपाएं इसको अपने अखबारात में, या जो भी वहाँ पर जरायद और रसाल। 1999 में तो रसाले वगैरह अखबारात ही होते थे। ये सोशल मीडिया तो बाद में शुरू हुआ ना, ये टिकटॉक और व्हाट्सएप और यूट्यूब वगैरह। तो नहीं छुपाए इन्होंने, बुरा किया जो तेरे वादे पे एतबार किया। बहरहाल 1999 3 जून का वो मुबाहिला जो इसकी तरफ से इसके भोले भाले मुरब्बियों ने दिया और मौलाना इलियास तार ने कबूल कर लिया, उसका ऐलान ये करता है सितंबर 1999 में। जिस तकरीर में ये ऐलान करता है उसी में अल्लाह की लानत का मौरद ठहर जाता है, उसी में ये बेहोश होता है, बीमार होता है, गिरता है, जो कुछ इसके साथ होता है उसी में बीमार हो जाता है। मुख्तसर बात ये कि उसी में ये बीमार होता है। चंद घंटों में अखबार में लिखा हुआ है, साल पूरे की इंतजार करनी नहीं पड़ी, चंद घंटों में अल्लाह की लानत आ पहुंची है और उसने इनके इस बनौटी खलीफे को अपनी लपेट में ले लिया है। तो ये उसके बाद 3-4 साल तक जिंदा रहा, लेकिन उस बीमारी से निकला नहीं। कहता था दुआ करो मेरी बीमारी ख़त्म हो जाए, दुआ करो। हर रोज़ अखबारों में वो छपती थी इसकी दरख्वास्तें कि खलीफा की दरख्वास्त है मरीदों से, दुआ करो मेरी सेहत ठीक हो जाए। और ख़ुद मरीदों को चूना लगाया हुआ है कि खुदा मेरे साथ हम कलाम होता है और खुदा मुझे कहता है कि तू ये जवाब देना। वहाँ असेंबली में ये भी साथ था ना, उसके बड़े भाई के साथ था। तो कहते हैं कि खलीफा हमें बताया करते थे कि भाई असेंबली में हमें बताया जाता था, अल्लाह पाक इल्हाम करके बताता था, तूने वहाँ सुबह इस सवाल का ये जवाब देना है, उस सवाल का वो जवाब देना है, खुदा हमारे साथ हम कलाम होता है। मैंने अफगान में लिखा हुआ है, मैंने अफगान में लिखा हुआ है ये बात। हाँ, कैसा चूना लगाया हुआ है मिर्जाइयों को भाई। खलीफा के साथ खुदा मुखातब होता है और खलीफा बीमार है, चारपाई पे पड़ा हुआ है और मरीज उनको कहता है दुआ करो मेरी इससे ठीक हो जाए, मेरी जान छुट जाए इस फालज से। अमर भाई ये तुम्हारा दोस्त नासर थल्ले पे चीखा मारदा, इनू ते ले लो। आजो ऊपर आजो। बातें जो डिक्टेशन कर रहा था खुदा, क्या वही जवाबात नहीं दिए खलीफा ने? क्या 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 बोला आपने? मैं ये कह रहा हूँ कि जब खुदा डिक्टेशन कर रहा था कि ये कहना है ये, तो फिर वही बातें जाके उन्होंने करनी थी ने, वो नहीं किया। वही करता रहा ना, लेकिन तो वो खुदा था डिक्टेशन नहीं। मैं आपको बताता हूँ वो कौन था। हाँ वाकई ठीक बात है, कोई इसके खलीफा को बताता था कि कल तुम असेंबली में इस सवाल का ये जवाब दो, उस सवाल का वो जवाब दो, बताता था। लेकिन वो बताने वाला पता कौन था? वो बनी इसराइल में एक वाक्या आता है, पहले मैंने सुनाया है कि 2 ताजर थे, उनकी जवान बहन थी, वो तिजारत पर जाने लगे तो उन्होंने सोचा। आपके माइक से काफी शोर शुरू हो गया, फिर बंद कर लेता हूँ, बंद कर लेता हूँ। हाँ, उन्होंने सोचा कि हम जा रहे हैं तो अपनी जवान बहन को किसके हवाले करके जाएं। ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है जो मैंने लगाई है टेप, इसको लाइक कर दो थोड़ा सा। ये क्यों नहीं ब्राड ऊपर जा रही है आपकी? अच्छा ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੋ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। खुश आमदेद, मोस्ट वेलकम। नासर भाई अच्छी बात हो रही है, खुदा की बात। ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਇਨਵਰਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਮਰ ਭਾਈ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ अच्छी ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ है ਤੇ बड़ी अच्छी तारीख ਜਿਹੜੀ ਦੁਹਰਾਈ जा रही है। का हक है
لیکن یہ میں پہلے جو خدا نے سندا- ڈکٹیشن کرا یہ پورا سن لے میں اس کے بعد میں سندا رہنا کہ جڑا اتنے نہیں بولدے اگے پیچھے دس دے نے کہ بادشاہ سلامت جڑے نے وہی بولدے نے اور کوئی نہیں، وہ پتہ ہے مینوں سارا کچھ۔ ناصر بھائی، محترم ناصر صاحب، ذرا خدا کی باتیں ذرا تھوڑا یہ سن کے عامر بھائی پھر ان کو اجازت دے دیجیے پلیز۔ ہاں میں مختصر کرتا ہوں، چھوٹی چھوٹی سی یہ بات مجھے سنا لینے دیں سناؤ کہ سناؤ بنی بادشاہ اسرائیل سلامت میں ایک اسرائیلی روایات میں سے ایک روایت ہے کہ وہاں پر کوئی 2 تاجر تھے، تو ان کی ایک جوان بہن تھی۔ وہ جوان بہن کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن اس زمانے میں تجارت ایسی ہی ہوتی تھی کہ 2 سال کے لیے 5 سال کے لیے آپ کو دور دراز کے ملکوں کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ وہ نکلے لیکن سوچ میں پڑ گئے کہ بہن کو کس کے حوالے کر کے جائیں، تو انہوں نے اپنی بہن کو دیکھا پورے علاقے میں ایک عابد زاہد متقی پرہیزگار صوفی بابا وہ ہے، تو انہوں نے کہا صوفی صاحب اگر ہم اپنی بہن کو آپ کے پاس چھوڑ دیں، جوان ہے، آپ پر ہمیں اعتماد ہے، آپ نیک آدمی ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ گھر میں ہے، آپ اس کے لیے اگر کوئی اس کو ضرورت پڑے تو آپ اس کی مدد کر دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ دونوں بھائی چلے گئے تجارت پر، اور شیطان آ گیا اس صوفی صاحب کے پاس اور کہنے لگا دیکھو انسان انس سے ہوتا ہے، انسان سے جب تک آپ انس نہ کرو، کوئی بات چیت نہ کرو، پیار محبت نہ کرو، بات چیت پوچھو نہ، تو کوئی بات تو نہ ہوئی۔ جاؤ تو صحیح لڑکی کو پوچھو تو صحیح اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی حاجت ہو، وہ بات کرنا چاہتی ہو کسی سے، اکیلی ہے گھر میں۔ وہ صوفی صاحب گئے تو جا کر لڑکی سے باتیں کرنے لگے۔ جب لڑکی سے باتیں کی تو معاملہ خراب ہو گیا۔ بھائی عامر بھائی معلوم علاقے چاہنا صوفی ایک انہوں نے اس بزرگ نو صوفی نہ کہو، صوفیہ نو بدنام نہ کرو پلیز، تہاڈے کول ایسی ریکویسٹ ہے، جزاک اللہ۔ اوے وہ بنی اسرائیل دا صوفی سی نا، تو نہ منو دس میں کی آنا کی نہیں آنا چاچا۔ تو وہ بدکاری کی انہوں نے، وہ لڑکی حاملہ ہو گئی اور صوفی صاحب پریشان ہو گئے کہ بھئی اب کیا کریں، میں تو نیک آدمی ہوں، صوفی آدمی ہوں، بزرگ یہاں پر تو مجھے ولی اللہ سمجھا جاتا ہے، تو میں نے تو بہت بڑا جرم کر دیا ہے، اب کیا کروں؟ اس نے سوچا کہ ایک ہی حل ہے کہ میں اس لڑکی کو مار دوں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، تو نشان ہی مٹا دو۔ اس نے لڑکی کو قتل کیا، لڑکی کے پیٹ میں بچہ تھا وہ بھی قتل کر دیا، اور قبر کھود کے لے جا کے راتوں رات ان کو کہیں دفن کر دیا۔ اب جناب کوئی 2-3 سال کے بعد وہ واپس آئے تاجر، گھر آئے تو بہن گھر نہ ملی۔ انہوں نے جا کے صوفی سے پوچھا بھئی بابا سرکار وہ ہماری بہن کدھر ہے؟ اس نے کہا کہ بیمار ہوئی تھی، فوت ہو گئی، میں نے دفنا دی ہے۔ اچھا، وہ پریشان ہو گئے، رونے دھونے لگے، قبر وغیرہ دیکھی۔ شیطان ان کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ دیکھو قبر کھود کر دیکھ لو، اس کے اندر بچہ بھی ہے اور یہ خاتون بھی ہے، اور اس نے یہ ظلم کیا ہے، آپ کی بہن کے ساتھ برائی کی ہے، وہاں سے ایک بچہ ہوا ہے اور بچے کو اور لڑکی کو وہاں دفنا دیا۔ قبر کھودی، وہ جرم ثابت ہو گیا۔ انہوں نے قاضی کو درخواست دے دی کہ ہماری بہن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، یہ صوفی واجب القتل قرار پایا۔ اب صوفی کو سنسار کی سزا ہوئی قاضی کی طرف سے، اور صوفی صاحب بیٹھے کہنے لگا بابا جی کیا بات ہے، پریشان بیٹھے ہو؟ کہتا ہاں۔ کہتا کیوں پریشان بیٹھے ہو، کیوں کھڑے ہو پریشان؟ لو آ گیا کوستان، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہتا بات یہ ہے کہ مجھے واجب القتل قرار دیا قاضی نے، تو وہ مجھے قتل کر دیں گے کل۔ تو شیطان کہنے لگا بھئی آپ نے جرم کیا تو آپ کو تو قتل کیا ہی جائے گا۔ تو چپ کر گیا۔ وہ کہتا ہے آپ قتل نہیں ہونا چاہتے؟ کہتا ہے نہیں ہونا چاہتا۔ بچنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے ہاں میں بچنا چاہتا ہوں۔ مرنا نہیں چاہتے؟ کہتا ہے ہاں میں مرنا نہیں چاہتا۔ شیطان کہتا ہے میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ کہتا ہے کیسے؟ کہتا ہے مجھے سجدہ کرو، میرے آگے سجدہ کرو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ جب اس صوفی نے اس کے آگے
माथा रखा, पेशानी रखी, शैतान पीठ फेर के भागा और कहने लगा दुनिया तुम्हारी पहले बर्बाद कर दी थी, अब आखिरत भी तुम्हारी बर्बाद करके जा रहा। पहले तुम्हारी दुनिया बर्बाद की थी, अब आखिरत भी बर्बाद करके जा रहा। बस ऐसा ही मामला यहाँ पर हुआ कि जो बंदा ये कहता था कि जनरल ज़िया हक देखो मेरे वो मोबाइल का निशाना बना है, उसको मजबूरन मुरब्बियों ने फंसवा दिया और मुरब्बियों ने उसकी तरफ से दस्तखत कर दिए कि भाई ये हमारे खलीफा साहब की तरफ से मोबाइल है। तो उसको कबूल करना पड़ा बामरे मजबूरी, जिस तरह तल्लत मलिक साहब नहीं कहते जवाबतन उनको वो मोबाइल कबूल करना पड़ा। और उस मोबाइल का जैसे अनाउंस किया तो वो तो मारे गए। मैं ये कह रहा था कि वो जो आप पूछ रहे थे ना कि खलीफा इनका, हाँ खलीफा इनका जिसको इल्हाम होता था असम्बली में, वो इल्हाम करता था एक, लेकिन करने वाला वही था जिसने उस सूफी को इल्हाम किया था ना, और उसको कहा था वो लड़की है उसको बचा लो, पहले जाके उसके साथ बदकारी करवाई, फिर उसको कहने लगा अब सजदा करो, सजदा किया तो कहता दुनिया भी गई थी आखिरत भी गई, मैं लगा जाता जी। ऐसे ही वो जो बाबा इनको जाके इल्हाम करता था ना वो शैतान, वो कहता था कल तुम ये जवाब देना, कल तुम ये जवाब देना असेंबली में, परसों तुम ये जवाब देना, बताता रहा। बिलाखिर जिस दिन नतीजा आने लगा 7 सितंबर को पीठ फेर के भागा सजदा करवा के ना उससे, कहता है लो मैंने तुम्हें इल्हाम सारे किए थे कि ये उल्टे उल्टे जवाब देना, तुमने दे दिए, दुनिया तुम्हारी पहले बर्बाद कर, अब आखिरत बर्बाद करके मैं जा रहा हूँ, वो तुम्हें काफर करार दे के मुखरज मिनल मिल्ला करार दे के तुम्हें निकालने लगे हैं, मैं जा रहा हूँ। उस दिन तो उसने पीछे नहीं देखा मुड़ के शैतान ने। 7 सितंबर तक वो इल्हाम करता रहा, बताता रहा कि कल असेंबली में ये जवाब देना, परसों ये जवाब देना, लेकिन 7 सितंबर को सजदा करवा के पीठ फेर के भाग गया। शैतान बड़ा लईन है, आपको पता है, कुरान में आता है अदुव्व मुबीन है, मोमिनों का वो बदतरीन दुश्मन है, मुसलमानों का तो वो बदतरीन दुश्मन, बल्कि बनी आदम का ही वो दुश्मन है, पूरी बनी आदम को उसने गुमराह किया है। तो बहरहाल वो शैतान इनको गुमराह करता था, ये समझते थे हमें खुदा बता रहा है, ये समझते थे कि हमें खुदा मिर्जा बता ताहिर रहा साहब है। अभी नहीं फोत हुए, उनको जरा वो बात वहीं पे रह गई, तकरीर कर रहे थे, उन्होंने मोबाइल एक्सेप्ट कर लिया, वो जरा प्लीज। हाँ सॉरी वो बात बीच में रह गई। नहीं, वो पीर अस्कानी भाई ने मुझे पूछा कि इल्हाम जो करता था उसने 7 सितंबर को नहीं इल्हाम किया कि आज तुम्हें काफिर करार देंगे। मैंने कहा हाँ कहा तो था, लेकिन वो बनी इसराइल वाले बाबा जी ਆਮਦ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਤਨੀ ਤੇ ਖੁਤਬਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਦਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਤਬਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਰੋਕ ਦੇਣਾ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, करो हुक्म करो। हाँ ठीक है नासिर साहब बात कीजिए। जी नासिर जी आप म्यूट हैं, नासिर जी म्यूट हैं आप। नासिर साहब पीर साहब इधर ऑप्शन ही नजर नहीं आ रहा पीर साहब, वो फोटो के ऊपर जाना पड़ता है फिर नजर आता है। अच्छा अभी पता नहीं है क्या ब्राड में वो म्यूट का ऑप्शन नजर हाँ, इस नहीं आ रहा। ब्राड की कोई प्रॉब्लम है, हम भी डीपी पे जाके करते हैं, वो वक्ती तौर पे गुजारा कर लें। नदीम परवेज साहब ने आज माशाल्लाह दाढ़ी को तेल लगा के लगाई है ब्राड, तो कल तक सही कर लेंगे। अच्छा मौलवी साहब सही कर लेना कल तक। हाँ जी, ये जो आपने अभी वाक़या ये वो इमाम इब्ने जौज़ी वाला जो बरसीसा वाला सुना है ना आपने वाक़या? हाँ वो जो बनी इसराइल वाली बात है। जी जी ठीक। ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ। नहीं कहानी है, मैंने कोई अपने ਸਾਹਿਬ पास ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਖੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੈਰ ਖਲੀਫਾ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਤਾ, ਇਹ ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਜੌਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਗਾਲਬਨ ਤਲਬੀਸ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਨੋਟ ਹੈ। बिलाल भाई नासिर साहब को तबसरा करने दीजिए। नासिर साहब बात कीजिए, ये जो किसके ऊपर तबसरा करना? खुदा जो वही करता था कि कल ये कहना है, इसकी क्या? वो तो अमर नज़ीर साहब ने आपको बता नहीं दिया, ये तो साथ थे ना उधर, इन्हें तो पूरी बात पता है, मैं ये गवाह थे उधर साथ में, तो उन्होंने आपको बता दिया, तो आप इसी बात पे यकीन रखें जो अमर साहब ने कहा है वो दुरुस्त है, क्योंकि इनको तो पक्का पता है।
तो नहीं, अगर उन्होंने नहीं आपको है तो आप बताइए। नहीं तो देखें बात ये है पीर साहब जी कि जितने वसूख से आमर साहब कह रहे हैं आपको बता रहे हैं तो यकीनन इनके पास वो कोई गवाही होगी। मैंने तो देखे मैं तो वो बात नहीं करता कि जिसकी मेरे साथ पक्का प्रूफ ना हो मेरे पास। तो आमर नज़ीर साहब ने जिस अंदाज असल से में बात नासिर की है साहब तो पता है क्या बात ये है कि बात इनसे हमें सबक लेना चाहिए, इबरत लेना चाहिए, ना कि हम नाराज हों। नहीं मैं नाराज नहीं हो रहा, मैं यही कह रहा हूँ कि मैं उस पर तबसरा क्या कर सकता हूँ। तो वो मतलब तो आमर ये नज़ीर आप साहब ही देखिए- पहुंचे हुए बंदे हैं, इनको ही पता होगा जिस वसूख से इन्होंने कहा है कि इन्हें वो सब बात पते में है। तो मैं तो उस पर तबसरा नहीं ना कर सकता, ये तो यही बता सकते हैं जिस तरह उन्होंने बताया है। तो मुझे तो लगता है नासिर कि भाईजान, ओ मेरे प्यारे भाई, हाँ जी अब जी देखिए खुदा जो है वो वही कर रहा है, बता रहा है कि कल आपने ये कहना है, ये कहना है, ये कहना है, और आखिर में नतीजा आप ये देख लें। तो इसमें वो अगर कोई मैं बता देता हूँ उसकी बात, वो उस पे बात मैं कर देता हूँ। जी, आप बताइए। उस पे ये बात है कि वो देखें उन्होंने अपना काम जो था वो पूरा करना था, उन्होंने अपनी हुज्जत तमाम जो करनी थी वो कर दी। तो फैसला तो जो करना था वो होना था, वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से ही होना था। मैं तो इस पे ये समझता हूँ कि ये जो फैसला हुआ है मैं तो इसे अपने लिए निशान समझता हूँ कि ये बहुत अल्लाह ताला ने ये भी एक करके दिखाया है कि वो सबको अलग करके हमें अलग किया है आपसे। मैं अपनी ज़ाती बात आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने लिए उसको एक निशान समझता हूँ। तो ये अल्लाह ताला की एक हिकमत थी कि उन्होंने हुज्जत पूरी करनी थी, अपनी जो बातें करनी थी वो रिकॉर्ड पे ले आए। तो बाकी जो होना था वो अल्लाह की मर्जी थी। लाश उधर पड़ी है दूसरी तरफ, उत्थे कहीं मारो। कितने मारा उथे दसो। मैं तो देखो रसकानी भाई ने क्या पूछा आपसे भला? यही पूछी है ना उन्होंने बात कि अगर अल्लाह बता रहा था तो फैसला क्यों फिर गलत हुआ, यही पूछा, इसी का जवाब दिया है मैंने। इसका क्या वाकई अल्लाह बता रहा था? नहीं जरूर अल्लाह बता रहा था उनको। मैंने वही बात सवाल की ये है है। कि जरूर अल्लाह उनको बता रहा था और उन्होंने अपनी हुज्जत पूरी करनी थी। और फैसला जो होना था मैंने आगे से कहा है कि फैसला जो होना था मैं अपनी ज़ाती हैसियत में उसे एक निशान समझता हूँ अल्लाह का, कि ये जो फैसला होया कि आप लोगों से हमें बिल्कुल अलग करके अल्लाह ताला ने कर दिया, ये बहुत अल्लाह की मेहरबानी है। अच्छा आमिर भाई, कहीं ये वही तो नहीं हुआ कि हमें अलग करना है, सिर्फ बात तबलीग करना, ये इसमें वही में नहीं है? मतलब कैसी बचगाना बात है कि जिस खुदा ने आपको इल्हाम किया कि भाई आप ये जवाब दें, क्या उसने इसलिए इल्हाम किया आपको काफिर करार दिलवाने के लिए? ओ भाई आपकी क्या हैसियत है और आपकी क्या असेंबली की हैसियत है किसी को कुछ कहने की? आप क्या चीज नहीं, एक समझते हैं सवाल अपने तो आप करने को? की हैसियत है कि मैं सवाल वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं अपना मैंने बताया आपको कि मैं समझता हूँ कि खुदा ताला ने बहुत बड़ी मेहरबानी की है कि मैं थोड़ी आवाज काट रखी थी है कि मैं नासिर किसी साहब, दफ्तर अगर हैसियत नहीं थी तो खुदा से इल्हाम क्यों आते रहे हैं? अगर हम इतनी मामूली हमारी बात थी तो अल्लाह यार ने देखिए इल्हाम मैं क्यों सवाल ये नहीं किया? है भाईजान, ये सवाल नहीं है, गलत सवाल हो रहा है। देखिए नासिर साहब, वो खुद गए थे, खुद कि मैं मुसलमान हूँ, बात यहाँ से शुरू हुई। वो खुद इसलिए गए थे कि भाई हम तो मुसलमान अच्छा हैं। पीर साहब आप- मैंने जो बात अमर की नजीर है साहब, ऐसा नहीं है क्या? ठीक है वो मुझे पता है। अच्छा बात ये है कि अमर नजीर साहब नासिर साहब एक मेरी गल सुनो, एक मिनट मेरी गल सुन ज्यादा मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मुझे 2 सेकंड। शुरुआत तो देख लीजिए कि क्या है। मैं कह रहा हूँ कि वो खुद रिक्वेस्ट करके खुद गए थे और किसने उनको कहा था कि आप जाएं और जाकर ये जवाब दें? वो शैतान था कि मतलब खुदा था जिसने कहा कि ये जवाब दोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा? ये सवाल है। वो खुदा था वो खुदा ने खुद काफिर करार दिलवाया। वो यार इल्हाम मैं का आपको कि देखें ये अमर जवाब नज़ीर दोगे साहब तो देखें काफिर मैंने करार अच्छा मुझे बात सुने, मैंने जो बात की है वो मैंने उर्दू में की है, चाहे मेरी उर्दू थोड़ी कमज़ोर हो, लेकिन आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। नहीं, ये नहीं समझ आ रहा कि खुदा क्यों चाहता था कि उनको हिला के, उनको बातें बता के उनको काफिर करार दिलवाया वो बता देता हूँ वो इसलिए कि आप बदरों को अलग करना था और हमें एक जमात में अलग करना था। उसके लिए वहां जाने की क्या जरूरत है? खुद फैसला कर लेते भाई आप अलग हैं, खुद हम फैसला अलग। नहीं ना होता। देखिए आमिर भाई, फैसला नहीं, कोई नहीं, आमिर भाई नहीं, सही। ठीक है, एक मिनट भाईजान, एक मिनट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आमिर भाई। फिर ये क्यों कहते हैं कि हमें काफिर करार दे जब खुदा यही चाहता था? ये सवाल है। अब हाँ ये बता नहीं, ये चाहता था कि आपको मैं अलग कर बता- दिया जाए। काफिर करार दिया गया 2 को,
मैं को बता नहीं, देता दो हूँ, को। वो भी बता देता जब हूँ, खुदा बता देता हूँ। चाहता था कौन आमिर उसको भाई, दो किसको, सवाल दो ये है- किसको, दो मेरी किसको? सवाल पूरा ले लीजिए, लाहौरी करो और कादियानी एक करो। मिनट एक मिनट एक मिनट ठहरे अमर साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, सवाल पूरा ले लीजिए आमिर भाई। एक एक करके करें ना, एक एक करके। अमर वो- साहब देखो वो- कभी वो हक तो की clear बात भी हुआ। कर दिया करें, क्योंकि वो मलक तलत साहब ने कहा है कि कुछ लोग होते हैं जो बात करते हैं जिन्हें बात की समझ नहीं आ रही होती। तो आपके लिए जो उन्होंने फहम बताया ना, उन्होंने कहा कि आपको बात की समझ आती होती है लेकिन आप बात को घुमाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं बात करूंगा उसको समझ के आप जवाब देंगे। गलत मतलब अभी एक वाले मैं ठहरे, एक मिनट ठहरे। आपने जो एक एक बात की है उसका जवाब लेने पहले आपने जो राजा साहब ने बात की है ना कि लोरी दो थे, उसकी बात मैं आपको बता देता हूँ। देखें बात यह है कि मैं एक आपको बताता हूँ। देखें आप मुसलमान हैं, मुसलमानों में जितने भी आपके सारे जो इजमा है उसमें जितने भी लोग हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं, ठीक है ना, तो वो इजमा के अंदर शामिल है। अगर उसमें से कोई एक आदमी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना माने तो क्या आप उसको इजमा के अंदर रखेंगे? वो आप में से होगा, वो आप में से नहीं होगा। इसी तरह जो लोहरी ग्रुप है उसको पता है कि वो क्या मानता है, तो वो हम में से नहीं है। आमिर भाई मेरा सवाल ले ठीक लीजिए होगी, एक होगी ये बात। अमर साहब आगे बात मेरी इस ते तबसरा तुसी कर दियो। आमिर साहब मेरा सवाल ले लीजिए। और फिर 73 हो गए ना जनाब, 73 80 लाहौरी 72 80 73 लाहौरी तो 74 तुसी हो गए ना। भाई वो वो कह रहे हैं कि वो 72 हमारे में शामिल है, वो 72 में शामिल है। ठहर नहीं, जो पीर अस्कानी भाई को सवाल कर मतलब वो भी मिर्जा साहब के मानने वाले। नहीं वो आप नहीं ना मानने वाले। वो सवाल अमर नज़ीर साहब एक मिनट अमर नज़ीर साहब मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। मैं उम्मीद ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਬਸਰਾ बिल्कुल करोगे। बिल्कुल मैं करता हूँ, जरा पीर अस्कानी भाई को जवाब दे लेना, कोई सवाल कर लेना। आमिर भाई बात यह है कि नासिर साहब ने ये कहा कि अल्लाह पाक यही चाहता था कि अलग हो जाएं, यानी ये फैसला जो असेंबली में हुआ खुदा का है, यही कह रहे हैं ना भाई? ये मैंने पहले जो कहा बिल्कुल यही कहा। और मैं मुझे बात तो पूरी करने दीजिए नासिर भाई, बात तो जी करिए। आमिर भाई उन्होंने यही कहा। हाँ एक अच्छा, जब फैसला खुदा का है तो ये अब ये जो रोना धोना है हमारे साथ, ये हो रहा है वो ये तो फैसला खुदा का है। पाकिस्तान के असेंबली और उलमा को क्यों कोसा जा रहा है, ये बताइए। इसका जवाब जरा आप बताइए। इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ, सुन लें। इसका जवाब ये है, मैं मुख्तसर सा दूंगा कि समझ जाएंगे आप, या अमर नज़ीर साहब उस पर तबसरा कर देंगे मेरी तरफ से। देखें आप किसी को कुत्ता तो कह सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसको आप अगर कहें कि वो भौंक कर भी दिखाए तो वो कुत्ता होता नहीं है, वो भौंक के नहीं दिखा सकता आपको। आप हमें कुछ भी कहते रहें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन आप जो उसके आगे रखते हैं ना बातें, वो मुश्किल है। आपके कहने से तो हमें बिल्कुल खुशी है, उसमें तो हम खुशी महसूस करते हैं जो आप कहते हैं। मैं ये ज़ाती तौर पर आपको अपना बयान दे रहा हूँ कि मुझे उससे बहुत खुशी होती है जब आप हमें अलग करके ऐसे बात करते हैं, लेकिन उसके आगे जो आप कहते हैं ना वो बात गलत है और वो इंसानियत के ख़िलाफ़ है, उसको कोई कबूल नहीं करता। जी अच्छा, बात ये है नासिर साहब, जो बुनियादी बात थी ना वो हम ये कर रहे थे कि मिर्ज़ा नासिर साहब का ये दावा है कि मुझे इल्हाम के ज़रिए से बताया जाता था कि असेंबली में फ़लाँ सवाल का फ़लाँ जवाब देना है, और अगर ये फ़लाँ सवाल है इसको स्किप कर जाना, इसका जवाब नहीं देना। ये आगे जो आ रहा है सवाल, इसका ये जवाब देना है, उसका वो जवाब देना है। यानी खुदा पीछे से डिक्टेट कर रहा था, बता रहा था। ये जो लोग बैठे हैं ना यहाँ पर 40-50 लोग, इनको समझ नहीं आ रही कि क्या अल्लाह ताला खुद चाहता था आपको काफिर करार दिलवाना। अगर खुद काफिर करार दिलवाना चाहता था तो आपको उसने खुद ये उल्टे जवाब पढ़ाए कि तुम ये जवाब दोगे, उल्टे जवाब दिए ना। जवाब सही देते तो काफिर तो ना कहलवाते। अगर ऐसे जवाब होते जो सेटिस्फैक्टरी जवाब होते, जो तसल्ली बख्श जवाब होते, तो वो कभी भी आपको काफिर ना करार दे। काफिर करार देने की वजह यही है कि आपने उनकी मर्जी के मुताबिक जवाब नहीं दिया, भले वो आप समझे कि भाई। आमर नज़ीर साहब उन जितनी मर्जी आप इसमें मदानी डाल के लस्सी को खींचते रहें। अभी आपने मैंने कहा आपको तबसरा करो, मैं दे तबसरा दिया। करने लगा हूं तो तबसरा आप गलत किए रहे। लेकिन ना मुझे जो उम्मीद थी आपसे, तो फिर आप उम्मीद तो मेरी नहीं है तरफ मुझे से आपसे। तबसरा कर दें, मैं सुनता हूं आप। नहीं आपसे जो मुझे उम्मीद नहीं है वो, लेकिन फिर भी मैंने उसने जन रख के कहा कि जो बात मैंने की है उसके ऊपर आप अमानतदारी से तबसरा कर दें, लेकिन वो आपको तौफीक नहीं होती, मुझे पता है इस बात का। देखें वो खुदा ताला हुज्जत कायम करना चाहता था हमारे लिए, हमें पता है कि वो क्यों गए उधर, ये भी मुझे पता है। उन्होंने क्या जवाब दिए वो भी मुझे पता है। वो रिकॉर्ड के ऊपर आने ज़रूरी थे, और ये काम जो होना था ये भी ज़रूरी था होना।
ये काम जो था ये होना बहुत ज़रूरी था। नासिर नहीं, ये साहब तो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये नहीं है। आपका डिस्कशन होना पॉइंट कौन सा है वो चाहिए था बताएं, मुझे क्या? पिन पॉइंट बताएं। पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है मतलब नासिर साहब कि अगर उनको ये मतलब उल्टे जवाब ऐसे जो अनसेटिस्फैक्टेड मतलब